So we'll be first discussing some questions of circuits in which we have resistors and capacitors. So first we'll be discussing some questions based on your circuits of capacitor and resistors. In this particular figure, we have to find the current flowing through the given resistors. तो ये जो given resistors हैं इनमें हमने current find out करना है. Now one method is you apply Kirchhoff's law, make the loops and find the current. Another method, you take your given points of the given circuit in terms of their potential difference. तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो given point है अगर मैं यहाँ पे notice करूँ, this is let us say point A, this is point B. Now if this is point A तो ये भी point A है और ये भी point A है. So हम कोशिश कर रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ ना लगाना पड़े, तो हम उसके लिए गिवन डिफरेंट टेक्निक्स सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये टेक्निक सीखेंगे तो हमें वहाँ पर लेस टाइम में क्वेश्चंस अप्लाई करने आएंगे. सो इफ़ आई गिव नेम टू दीज पॉइंट्स, तो देखो ये कनेक्टिंग वायर है तो ये B, ये कनेक्टिंग वायर है ये C, ये कनेक्टिंग वायर है ये A. Now in this particular case, if I observe this AB, तो ये देखो ये AB, तो A is at high potential, B is at low potential, और ये बैटरी के पॉइंट्स हैं. तो अगर ये बैटरी के पॉइंट्स हैं तो what I have is that VA minus VB will be equal to 10 volt. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया कि VA minus VB is 10 volt. And then if I see this A and C, तो अगर मैं A and C पॉइंट देखूँ तो VA minus VC is equal to 4 volt. तो मेरे पास ये VA minus VC is equal to 4 volt आ गया. तो ये VA minus VC is 4 volt. और देखो अगर ये A और C के बीच में 4 volt है तो ये 2 और 4 देखो पैरेलल है, क्योंकि ये देखो ये A point और C point. So this means that what you get is that across your 2 ohm the potential difference is 4 volt. ये 2 ohm के across 4 volt potential difference है. और अगर ये 2 ohm के across 4 volt potential difference है तो current कितना आएगा? तो जो current यहाँ आएगा that will be equal to V over R is equal to I. I is equal to V by R. So current, we know that current I will be equal to V by R. ये हमारा करंट का फॉर्मूला है. तो हम यहाँ पे करंट का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो what current we'll get here is that the value of current here will be equal to 2 ampere and direction will be from high potential to low potential. ये जो पॉइंट है देखो ये हाई पोटेंशियल है, तो A point is at high potential, this C point is at low potential, so current will be flowing from high potential to low potential. Now what is the potential difference here? यहाँ पे potential difference क्या होगा? तो how to find potential difference at this particular end? तो if I solve these particular 2 equations, अगर मैं ये 2 equations solve करूँ, if I subtract 2 from 1, अगर मैं ये 1 में से 2 को माइनस कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 1 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास ये माइनस प्लस माइनस, तो ये VA माइनस VA कैंसिल हो गया, तो दिस इज VC माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट. तो आपके पास ये C और B, ये आपका C और B पॉइंट है, ये C और B, तो ये C और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6 वोल्ट. तो here the potential difference is 6 volt, and if here potential difference is 6 volt, what will be the current? So current will be equal to V by R, potential difference over resistance. तो यहाँ पे जो current की value बनेगी that current will be equal to V by R, and that is also your 2 ampere, 6 by 3 2 ampere, and current will flow from high potential to low potential. तो ये current की direction है. तो आपके पास यहाँ पे ये 2 ampere यहाँ आया, फिर ये 2 एम्पेयर ये चला गया, ये 2 एम्पेयर, देन 2 एम्पेयर, यहाँ पर आके 2 एम्पेयर,
अब ये नीचे 2 एम्पियर जा रहा है, तो दिस मीन्स दैट द करंट फ्लोइंग इन दिस लाइन इज 0। इस लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये वाली लाइन में। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करंट गिवन बाय 4 वोल्ट बैटरी इज 0। ये 4 वोल्ट बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा, यहाँ से फ्रॉम 4 वोल्ट बैटरी नो करंट इज बीइंग गिवन आउट। तो हमें पेपर में से क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द करंट इन द गिवन रेजिस्टर्स, हाउ मच करंट इज सप्लाइड बाय बोथ द बैटरीज। तो 10 वोल्ट इज सप्लाइंग 2 एम्पियर करंट एंड 4 वोल्ट इज सप्लाइंग नो करंट। 4 वोल्ट कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करा के देखो तो यहाँ पे इस लाइन में कोई करंट नहीं आ रहा। सो हमें ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में जिसमें इस टाइप का सर्किट देके एग्जामिनर कहेगा कि हर रेजिस्टर में करंट निकालो और ये देखो कि बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक किरचॉफ्स लूप लॉ है, पर अगेन किरचॉफ्स लॉ जब लगाओगे तो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, लंबा हो जाएगा काम। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी कि हाउ टू यूज़ अल्टरनेटिव मेथड्स। तो ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड है। तो देखो ये चीज़ पता लगी हमने यहाँ पे क्या किया है। हाँ जी, ये देखो ये क्लियर है कि हमने पॉइंट्स को नेम दिए और फिर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखा और फिर रेजिस्टर्स में करंट आया और फिर करंट को जब हमने फ्लो करवाया तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो 4 वोल्ट हमारी बैटरी है यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा। अब ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन फ़र्क क्या है पिछले और इसमें, ये रेजिस्टर की वैल्यू, हेयर द वैल्यू वाज 2 ओम, नाउ हेयर द वैल्यू इज़ 1 ओम। सो अगेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू of the current flowing through each resistor and the current supply by the batteries. So in this case first of all we'll name the points. तो ये हमारा point A, B, अब ये point A है connecting wire, तो this is also point A, this is also point A, तो ये connecting wire हो गया। फिर ये connecting wire B, this is point B, C एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हो गए, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स में ये गिवन सेल को देखो, ये ए, तो ये ए और ये बी, ए और बी। तो मेरे पास क्या आ रहा है कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज वी ए high potential, VB low potential, so VA minus VB will be equal to 10 volt. So ये clear है, VA minus VB 10 volt कैसे आया। अब यहाँ पर अगर मैं ये given A और C को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 4 वोल्ट है। Why? ये देखो, ये आपके पास A और ये C, तो A is high potential, C is at low potential। तो ये A is high potential, C is at low potential। This is 4 volt। So you want to find the current flowing in this particular resistor। तो यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे, तो करंट will be equal to V by R। तो V is 4, R is 1 and current will flow from high potential to low potential। A high है, C low है, तो current will flow from high potential to low potential and that current will be equal to V by R, that is 4 ampere। तो ये करंट 4 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। कैसे देखेंगे, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस 2 फ्रॉम 1, तो अगर मैं इस 2 को 1 से माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी VC माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड C इज ग्रेटर देन B। तो C का पोटेंशियल B से बड़ा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। तो यहाँ पे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है एंड करंट
flowing here will be how much? तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा that will be V by R, that is 6/3, that is 2 ampere. So A 2 ampere. So from here 2 ampere, 2 ampere. अब यहाँ पे देखो 2 एम्पेयर आ गया, लेकिन ये जो करंट है ये 4 है. सो करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग. इफ करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग, तो यहाँ से 2 एम्पेयर करंट आना चाहिए ताकि ये 4 बने. तो यहाँ से 2 एम्पेयर आना चाहिए ताकि ये 4 बने. तो ये जो बैटरी है यहाँ से कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पेयर. और फिर ये जो करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग, तो ये 2 नीचे चला गया, तो अगेन यहाँ पे 2 एम्पेयर. सो नाउ द करंट गिवन बाय बोथ द बैटरीज, दोनों बैटरीज जो करंट दे रही हैं, 10 वोल्ट भी 2 एम्पेयर करंट दे रहा है और 4 वोल्ट भी 2 एम्पेयर करंट दे रहा है. बोथ द बैटरीज आर गिविंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर. अब पिछले क्वेश्चन में देखो ये जो 4 वोल्ट था वो कोई करंट नहीं सप्लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो 4 वोल्ट है वो 2 एम्पेयर करंट सप्लाई कर रहा है और रेजिस्टर्स में ये करंट फ्लो कर रहे हैं. तो देखो ये समझ में आया सर्किट कैसे हमने बनाया, हाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ करंट. तो हमने पॉइंट्स को जब यहाँ पे स्पेसिफाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे हमें करंट पता लग रहा है. हाँ जी, देखो क्लियर है सबको. सो ये हमारे पास ऐसे ही एक और सर्किट है. सो ये सर्किट भी अब पिछले जैसे ही है, लेकिन रेजिस्टर्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है. अब यहाँ पे 1 ओम था, ये रेजिस्टर अब 3 ओम है. सो वी वांट टू सी दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द आंसर. आंसर के डिफरेंसेस हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो इन दिस केस वी हैव दिस पॉइंट A, this point is B, C. तो ये आपके पॉइंट्स हो गए. अब ये जो आपके गिवन पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास अगेन वही है कि VA माइनस VB इज 10 वोल्ट. Then we have VA minus VC, that is 4 volt. Now here the potential difference is 4 volt. So current flowing here will be your 4/3. So 4/3 is 1.33 एम्पेयर. तो ये 4/3 करंट हो गया. तो 4/3 is 1.33. तो ये आपका करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. नाउ इन दिस केस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हेयर? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, सो 1 minus 2. So this value is VC minus VB is equal to 6 volt. So here your potential difference will come out to be 6 volt, and the current here will be equal to 2 एम्पेयर. तो करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर आ गया. अब ये जो 2 एम्पेयर करंट है ये आपका यहां से फ्लो करेगा. अब ये 2 एम्पेयर करंट देखो यहां आया, करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग. अब ये 1.332 से कम है. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज 0.67 एम्पेयर करंट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द गिवन बैटरी. 0.67. अब ये आपका 0.67, तो ये 0.67 और ये 1.33, तो ये 0.67 और 1.33 मिलके ये फिर 2 बन गया. तो यहाँ से 1.33 0.67 एम्पेयर. सो ये करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग. सो दिस इज योर गिवन वैल्यू. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 4 वोल्ट है
ये करंट को ऑब्जर्व करो, अगर आप इस 4 वोल्ट में ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो करंट है ये ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे 4 वोल्ट इज नॉट सप्लाइंग करंट, 4 वोल्ट करंट सप्लाई नहीं कर रहा, वो सर्किट से करंट ले रहा है। तो हेयर दिस 4 वोल्ट इज अंडरगोइंग चार्जिंग, दिस 4 वोल्ट इज नॉट सप्लाइंग करंट टू द सर्किट, रादर इट इज टेकिंग करंट फ्रॉम द सर्किट। तो ये तीनों आंसर्स में फर्क है। जो पहला केस किया था वहां पे ये 4 वोल्ट करंट दे ही नहीं रहा था। जो दूसरा वाला केस है, अगर मैं इस केस को ऑब्जर्व करूं तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो 4 वोल्ट है ये सर्किट में 2 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर मैं इसको देखूं, ये वाला केस देखूं, तो यहाँ पे ये जो 4 वोल्ट है ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा, ये सर्किट से करंट ड्रॉ कर रहा है, ये सर्किट से करंट ले रहा है। दिस 4 वोल्ट इज अंडरगोइंग चार्जिंग। तो ये तीनों में आंसर्स में फर्क है, तीनों में जो 4 वोल्ट यहाँ लगा हुआ है उसके आंसर्स में फर्क है, और ये आपके सर्किट का करंट है। तो यहाँ पर हम जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। सो देखो ये कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे जो हमने लगाया है ये चीज क्लियर है। देखो ये पता लग गया कि 4 वोल्ट चार्ज हो रहा है, ये जो 4 वोल्ट है ये करंट सर्किट से ले रहा है, ये सर्किट को करंट दे नहीं रहा। हाँ जी, क्लियर है सबको? देन next we have another case. Here you have this given circuit, and in this given circuit this is your point A, point B, and point C. तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं ये 8 वोल्ट देखूं तो हाई पोटेंशियल इज A, लो पोटेंशियल इज B। तो ये जो आपका A है वो हाई पोटेंशियल, ये B जो है वो लो पोटेंशियल। तो मेरे पास यहाँ पे VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 वोल्ट। सो ये आपके पास VA माइनस VB इज 8 वोल्ट। अब यहां पर देखो फर्क, ये देखो ये लो पोटेंशियल है, ये देखो ये लो नेगेटिव है, लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल है। देखो ये देखो ये A पॉइंट C के कंपैरेटिवली, A पॉइंट C के कंपैरेटिवली लो है, A पॉइंट B के कंपैरेटिवली हाई है, A पॉइंट B के कंपैरेटिवली हाई है, लेकिन A पॉइंट C के कंपैरेटिवली लो है। कैसे लो है? ये नेगेटिव इज कनेक्टेड टू A एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू C। तो यहां पर अब ध्यान रखना है VC माइनस VA इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इसीलिए हम ये सर्किट के 4 पार्ट्स कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे सर्किट को 4 पार्ट्स में सॉल्व किया। जो पहले मेरे तीनों पार्ट थे उनमें मेरा जो A पॉइंट था वो C से बड़ा था, इसलिए VA माइनस VC। दूसरे में भी मेरा जो पॉइंट A था उसका पोटेंशियल C से बड़ा था, VA माइनस VC। जो मेरा तीसरा था उसमें भी A C से बड़ा था, तो VA माइनस VC। लेकिन अब जो मेरा सर्किट है उसमें मेरा जो A पॉइंट है वो लो है इन कंपैरिजन टू C। A इज ग्रेटर देन B बट A इज स्मॉलर देन C। तो यहाँ पे जो VC माइनस VA है दैट इज 4 वोल्ट, एंड हेयर your potential difference is 4 volt, but the current how much current will be equal to V by R. So current is V by 2, that is 2 ampere, but current will be flowing from high potential to low potential, and high C is high potential, C का potential जो है वो A से बड़ा है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम C टू A बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो मेरा करंट आएगा दैट विल बी 2 एम्पेयर। तो करंट इज 2 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू दिस फ्रॉम C टू A। नाउ हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस हेयर? यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? तो इफ आई ऐड द गिवन इक्वेशंस, अगर मैं ये 2 इक्वेशंस को ऐड कर दूं, 1 एंड 2 को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया VC
माइनस वी बी इज इक्वल टू 12। तो ये अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड कर दूं तो वी ए और वी ए कैंसिल हो गए, तो ये आ गया वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू 12। सो इफ वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, the current flowing here will be how much? Current flowing here will be equal to 3 ampere, 4 ampere. So current here will be equal to 4 ampere, that is V by R, 12 by 3. And direction will be from high potential to low potential. And what you observe is that C is greater than B. ये आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो C इज ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे करंट विल फ्लो फ्रॉम C टू B. तो इफ आई वांट टू सी द फ्लो ऑफ करंट, अगर मैं यहाँ पे करंट देखना चाहता हूँ तो ये 4 एम्पेयर, यहाँ पे भी 4 एम्पेयर, ये 4 एम्पेयर. करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू करंट लीविंग, तो ये 2 भी ऊपर आ रहा है, 4 भी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे करंट लीविंग इज 6 एम्पेयर. Here again 6 एम्पेयर, और ये जो 6 एम्पेयर है यहाँ आके 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 2 ऊपर चला गया और 4 नीचे चला गया. सो यहाँ पर अगर आप इस गिवन बैटरी को देखो तो इस बैटरी से 6 एम्पेयर करंट सप्लाई हो रहा है. अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, और देखो 4 वोल्ट में से ज़्यादा करंट जा रहा है और 8 वोल्ट में से कम करंट जा रहा है इन कंपैरिजन. तो इट्स ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा करंट देगा, ये सर्किट के कनेक्शंस पे डिपेंड करेगा. और इस केस में जो A है उसका पोटेंशियल C के कंपैरेटिवली जो है वो कम है, तो मेरे करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पर वो पहले से चेंज हो गई है. सो दिस इज़ हाउ आई विल सॉल्व द गिवन सर्किट. सो चेक करो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं. ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ये कंसेप्ट समझ में आ गया. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. हाँ जी, क्लियर है सबको?